دوستو ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن کے اس چینل پر آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں، جو کہ 120 سوال و جوابات پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 1، ہائیکو کس ملک کی صنف سخن ہے؟ ہائیکو کس ملک کی صنف سخن ہے؟ اے میں ہے جرمنی، بی میں ہے ترکی، سی میں ہے چین اور ڈی میں ہے جاپان۔ کا آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ ہائیکو جاپان کی صنف سخن ہے۔ سوال نمبر 2، موضوعاتی نظمیں لکھنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ موضوعاتی نظمیں لکھنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اے میں ہے داغ، بی میں ہے محمد حسین آزاد، سی میں ہے غالب اور ڈی میں ہے فیض احمد فیض۔ تو موضوعاتی نظمیں کس نے لکھی؟ بنیاد ڈالی، موضوعاتی نظمیں لکھنے کی بنیاد ڈالی، تو اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 3، محمد حسین آزاد کے مضامین کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ محمد حسین آزاد کے مضامین کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے نیرنگ خیال، بی میں ہے آب حیات اور سی میں ہے گنج قناعت اور ڈی میں ہے خواب امن۔ تو محمد حسین آزاد کے مضامین کا مجموعہ کا نام بتانا ہے۔ آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی یہ تاریخی کتاب ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا اس کا صحیح جواب ہے اے، نیرنگ خیال۔ مضامین کے مجموعے کا نام ہے نیرنگ خیال۔ سوال نمبر 4، ان میں سے کون سی نظم حالے کی نہیں ہے؟ اے میں ہے رحم و انصاف، بی میں ہے برکھا رت، سی میں ہے حب وطن اور ڈی میں ہے خاک ہند۔ تو اے میں رحم و انصاف یہ بھی حالے کی ہے، برکھا رت یہ بھی حالے کی نظم ہے، حب وطن یہ بھی حالے کی نظم ہے، تو اس میں آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یہ حالے کی نظم نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کس نے کہا ہے؟ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کس نے کہا ہے؟ اے میں ہے پروفیسر احتشام حسین، بی میں ہے پروفیسر اول احمد سرور، سی میں ہے پروفیسر جگناتھ آزاد اور ڈی میں ہے پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ تو اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، پروفیسر اول احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو مقدمہ شعر و شاعری کو کہا ہے۔ سوال نمبر 6، کس شاعر نے بچوں کے لیے درسی کتابیں اور نصیحت آمیز نظمیں لکھی ہیں؟ بچوں کے لیے درسی کتابیں اور نصیحت آمیز نظمیں لکھی ہیں۔ اے میں ہے جانعار اختار، بی میں ہے نون میم راشد اور سی میں ہے اسماعیل میرٹھی اور ڈی میں ہے مخدوم محی الدین۔ تو اس کا صحیح جواب بچوں کے لیے جو کتابیں لکھی ہے یہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، نصیحت آموز کتابیں۔ سوال نمبر 7، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ نمبر اے میں ہے میرات النظیر، بی میں ہے تجنیس و تام اور سی میں ہے تجاہل عارفانہ اور ڈی میں ہے تضاد۔ اس کا آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا، تضاد۔ زندگی اور موت ضد ہے، اس لیے یہ تضاد ہوگا۔ سوال نمبر 8، شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ڈاٹ لکھا ہوا ہے کس کے نام سے شائع ہوا؟ اے میں ہے نغمہ الہام، بی میں ہے ریاض رضوان اور سی میں ہے گل گدا اور ڈی میں ہے سرور زندگی۔ تو 8 کا آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا، نغمہ الہام۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان کا نام ہے نغمہ الہام۔ سوال نمبر 9، داغ کے علاوہ کس شاعر کی وفات و تدفین حیدرآباد میں ہوئی؟ داغ کے علاوہ کس شاعر کی وفات و تدفین حیدرآباد میں ہوئی؟ اے میں ہے فانی بدایونی، بی میں ہے مجاز اور سی میں ہے میرا جی اور ڈی میں ہے جوش۔ تو داغ دہلیوی کے علاوہ کس شاعر کی وفات حیدرآباد میں ہوئی تھی؟ تو یہ فانی بدایونی کی وفات حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10، اصغر گونڈوی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ اصغر گونڈوی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟
ए में है गोंडा 1882 ईस्वी, बी में है गोरखपुर 1884 ईस्वी, सी में है लखनऊ 1886 ईस्वी और डी में है मुरादाबाद 1888 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोरखपुर 1884 ईस्वी। अस्कर गोंडवी कहाँ पैदा हुए और किस सन में पैदा हुए? तो गोरखपुर 1884 ईस्वी। अस्कर गोंडवी गोरखपुर 1884 ईस्वी। सफ़ी लखनवी की गज़लियात के मजमूए का नाम क्या है? ए में है उरूस सुखन, बी में है गोरे गरीबा, सी में है सहीफ़तुल गज़ल और डी में है बहर तरन्नुम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सहीफ़तुल गज़ल। सूफ़ी लखनवी की सहीफ़तुल गज़ल। सवाल नंबर 12, मेहनत कशों और मज़दूरों के शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुए? ए में है मखदूम, बी में है हसरत, सी में है जिगर और डी में है असगर गोंडवी। तो मेहनत कशों और मज़दूरों की शायर की हैसियत से कौन शायर मशहूर हुए? तो ए हो जाएगा ऑप्शन सही है, मखदूम महिउद्दीन। सवाल नंबर 13, कौन सा शेरी मजमुआ मखदूम का नहीं है? ए में है सुर्ख सवेरा, बी में है गुलतर, सी में है बसाते रक्स और डी में है फ़िरोज़ा। तो कौन सा शेरी मजमुआ मखदूम का नहीं है? तो ये हो जाएगा फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा ये मोइन हसन जज़बी का है और ये तीनों सुर्ख सवेरा, गुलतर और बसाते रक्स ये मखदूम महिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 14, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर का नाम क्या है? ए में है सरदार जाफरी, बी में है फैज़, सी में है कैफ़ी आज़मी और डी में है जानिसार अख्तर। तो इकबाल के अलावा कौन सियालकोट में पैदा हुए थे? तो फैज़ अहमद फैज़ सही जवाब हो जाएगा इसका। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 15, आओ कि कोई ख्वाब बुने, आओ कि कोई ख्वाब बुने किस शायर का मजमुआ कलाम है? ए में है मखदूम, बी में है साहिर लुधियानवी, सी में है कैफ़ी आज़मी और डी में है हसरत मोहानी। तो आओ कि कोई ख्वाब बुने ये साहिर लुधियानवी का शायर है। मजमुआ कलाम है, ये साहिर लुधियानवी का मजमुआ कलाम है, आओ के कोई ख्वाब बुने। सवाल नंबर 16, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ए में है मीर अमन आराइश महफिल, बी में है सैयद हैदर बख्श हैदरी सिंहासन बतीसी, सी में है मीर शेर अली अफसोस बाग़ उर्दू और डी में है मीर काजिम अली जवां बाग़ उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है इसका, मीर शेर अली अफसोस बाग़ उर्दू सही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की है, बागो बहार मीर अमन की है। सवाल नंबर 17, फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ? ए में है कलकत्ता 1800 ईस्वी, बी में है 1803 ईस्वी लखनऊ, सी में है 1805 ईस्वी दिल्ली और डी में है 1807 ईस्वी हैदराबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी कलकत्ता। सवाल नंबर 18, विलियम मेवर की लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी? विलियम मेवर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद नाम की किताब लिखी थी। ये विलियम मेवर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद जो किताब लिखी थी, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर ये उंगली उठाया। इसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताब लिखी थी? ए में असबाब बगावत हिंद, बी में है तारीख सरकशी बिजनौर और सी में है खुतबात अहमदिया और डी में है आसारुस सनादीद। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा खुतबात अहमदिया। सर सैयद अहमद खान ने विलियम मेवर की किताब का जवाब जो है खुतबात अहमदिया लिख करके दिया था। सवाल नंबर 19, टिप्टी नसीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? ए में बिनातुन नाश, बी में है इब्नुल वक्त, सी में तौबतुन नसूह और डी में है मिरतुल उरूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला नावल मिरतुल उरूस। सवाल नंबर 20, मौलाना शिबली की आखिरी तसनीफ़ कौन सी है जो वफ़ात के सबब नातमाम रही? ए में अल मामून, बी में है सीरतुन नबी, सी में है अल फारूक और डी में है शेरुल अज्म। तो कौन सी तसनीफ़ अधूरी रह गई थी और उसके वफ़ात के बाद ये जो है उसको पूरा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीरतुन नबी। मौलाना शिबली नोमानी की आखिरी तसनीफ़ सीरतुन नबी थी जो वफ़ात के सबब जो है ये अधूरी रह गई, नातमाम थी। इसको सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी लिख करके अपने उस्ताद जो कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे मौलाना शिबली नोमानी, वो सीरतुन नबी को मुकम्मल किए। सवाल नंबर 21, खुर्शीद जां और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार हैं? 21 का है
खुर्शीद जहाँ और गौहर मिर्जा किस नावल के किरदार है? ए में है उमराव अदा, बी में है फसाना आज़ाद, सी में है निर्मला और डी में है मंसूर मोहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमराव अदा, मिर्ज़ा हादी रुतबा के लिखे हुए नावल है। सवाल नंबर 22, प्रेमचंद का असल नाम बताइए। प्रणाव राय, बी में है प्रकाश राय, सी में है गणपत राय और डी में है धनपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, धनपत राय। सवाल नंबर 23, प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? ए में मैदान अमल, बी में है गोदान, सी में पर्दा मिजाज और डी में है बाजार हुस्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदान, आखिरी नावल है। सवाल नंबर 24, इनमें से कौन सा नावल कृष्णचंद का नहीं है? ए में है मेरी यादों के चिनार, बी में एक औरत हजार दीवाने, सी में है टेढ़ी लकीर और डी में है एक गधे की सरगुजश्त। तो इसमें कौन सा नहीं है? टेढ़ी लकीर नहीं है, ये इसमें चुगताई का टेढ़ी लकीर नावल है। और ये तीनों जो है ये कृष्णचंद का नावल है। मेरे यादों के चिनार, एक औरत हजार दीवाने और एक गधे की सरगुजश्त। सवाल नंबर 25, नावल एक चादर मैली सी में तलू का क्या काम करता है? एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है, एक चादर मैली सी। तो इसमें तलू का क्या काम करता है? ए में ऑटो चलाता है, बी में सब्जियां बेचता है, सी में सरकारी मुलाजिम है और डी में यक्का चलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यक्का चलाता है। सवाल नंबर 25, नावल मेरे भी सनम खाने का मौजू क्या है? ए में तालीम निस्वां, बी में तक़सीम हिंद, सी में तबक़ाती कशमकश और डी में है मज़दूरों के मसाइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक़सीम हिंद। मेरे भी सनम खाने का मौजू तक़सीम हिंद है। सवाल नंबर 27, और मेरे भी सनम खाने ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। सवाल नंबर 27, इनमें से क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल कौन सा है? ए में चाय के बाग, बी में गर्दिश रंगे चमन और सी में आखिरी शब के हमसफ़र और डी में है मेरा भी सनम खाने। तो नावल है ये चाय के बाग। चाय के बाग जो है ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। सवाल नंबर 28, शऊर की रूह की तकनीक किस नावल निगार के यहाँ नुमायां तौर पर मौजूद है? शऊर की रूह की तकनीक, ए में है सरसार और बी में है क़ुर्रतुल ऐन हैदर, सी में है बेदी और डी में है हयातुल्ला अंसारी। तो शऊर की रूह की तकनीक, शऊर की रूह की तकनीक ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। शऊर की रूह की तकनीक क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने इस्तेमाल किया है आग का दरिया नावल में, और उससे पहले सज्जाद ज़हीर ने लंदन की एक रात में शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 29, हयातुल्ला अंसारी के नावल की शनाख्त कीजिए। हयातुल्ला अंसारी, ए में है ईवान गज़ल, बी में है खुदा की बस्ती, सी में है लहू के फूल और डी में है कारे जहाँ दराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हयातुल्ला अंसारी के नावल का नाम है लहू के फूल, हयातुल्ला अंसारी। ईवान गज़ल ये जो है जीलानी बानो का नावल है। सवाल नंबर 30, गिरहन किसका अफसाना है? ए में इस्मा चौगताई, बी में है कृष्णचंद्र, सी में है मंटू और डी में है राजेंद्र सिंह बेदी। तो गिरहन जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। गिरहन राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। सवाल नंबर 31, कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी किताब का नाम कौन सी है? तनक़ीदी किताब कौन सी है? कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी किताब कौन सी है? ए में है तनक़ीदी हाशिए, बी में है अदब और ज़िंदगी, सी में है अमली तनक़ीद और डी में है हमारी शायरी। तो ये अमली तनक़ीद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी किताब का नाम अमली तनक़ीद। सवाल नंबर 32, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ए में रिवायत और बगावत एहतशाम हुसैन, बी में है तनक़ीदी इशारे कलीमुद्दीन अहमद और सी में है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र मजनू गोरखपुरी और डी में है लफ्ज़ माना और अहमद सुरूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवायत और बगावत एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 33, अल्लामा इकबाल ने किस अंग्रेज़ प्रोफेसर से फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की? ए में है ब्राउन, बी में है ऑर्नल्ड, सी में है मैक टेगरेट और डी में है निकलसन। तो किससे फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की थी? तो प्रोफेसर ऑर्नल्ड से। सवाल नंबर 34, इकबाल की रूहानी मुर्शिद कौन थे? ए में मौलानी रूमी
और बी में है शेख सादी, सी में है हाफिज शिराजी और डी में है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके रूहानी मुर्शिद थे अल्लामा इकबाल? तो मौलाना रूमी के। सवाल नंबर 35, नज़्म तुलुए इस्लाम इकबाल की किस शेरी मजमूए में शामिल है? ए में है बाले जिब्रील, बी में अरमगान हिजाज, सी में है ज़रब कलीम और डी में है बांगे दरा। तो तुलुए इस्लाम ये बांगे दरा में शामिल है। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। और अरमगान हिजाज जो है ये आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। सवाल नंबर 36, खा के न सीरत निगारी है न ज़बान उमरी, ये किसी दिल आवेज़, और यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है डॉट डॉट की धुंधली तस्वीर है। तो इसमें सही ऑप्शन भरना है। ए में है कहानी और बी में है शख्सियत और सी में है शायर और डी में है मौलवी। तो खा के न सीरत निगारी है न ज़बान उमरी, ये किसी दिल आवेज़ शख्सियत की धुंधली तस्वीर है। सवाल नंबर 37, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों पर मुश्तमिल पहला मजमुआ कौन सा है? ए में है हम नफसान रफ्ता रफ्ता, बी में है आशिफ्ता बयानी मीरी और सी में है गंजहाए गिरमाए और डी में है खंदा। चारों ये जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के ही हैं। तो सबसे पहला खाका जो है ये गंजहाए गिरमाए है, रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। सवाल नंबर 38, उर्दू में खाके निगारी का बाकायदा आगाज़ किसने किया था? ए में है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है मौलवी अब्दुल हक और सी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और डी में है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो सही जवाब हो जाएगा सी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। डिप्टी नज़ीर अहमद की कुछ कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये खाका है, पहला खाका है बाकायदा। सवाल नंबर 39, ज़मानी तरतीब से ज़ेल के तंज़ो मिज़ाह निगारों की सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये में है मुल्ला रमोज़ी, तंज़ो मिज़ाह निगार की ज़मानी तरतीब पैदाइश के एतबार से। ए में मुल्ला रमोज़ी, बी में है पेतरस बुखारी और सी में है रशीद अहमद सिद्दीकी और डी में है कन्हैयालाल कपूर। ए में है मुल्ला रमोज़ी, पेतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैयालाल कपूर। पेतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैयालाल कपूर और मुल्ला रमोज़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्ला रमोज़ी, पेतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैयालाल कपूर। सवाल नंबर 40, पेतरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुए? ए में है 1895 ईस्वी लाहौर और बी में है 1896 ईस्वी सियालकोट, सी में 1897 ईस्वी कराची या डी में 1898 ईस्वी पेशावर। पेतरस बुखारी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये पेशावर में 1898 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 41, गुबार के खातिर क्या है? ए अफसानों का मजमुआ, बी खुतूत का मजमुआ, सी खाकों का मजमुआ और डी शेरी मजमुआ। तो ये सही जवाब हो जाएगा बी, खुतूत का मजमुआ, गुबार खातिर। सवाल नंबर 42, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? ए में इकबाल, बी में अबुल कलाम आज़ाद और सी में गालिब और डी में हाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ है। 2 खुतूत का मजमुआ है, एक उर्दू हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला। उर्दू हिंदी ये फ़ारसी के खुतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 43, मौसीकी और स्टेज की सिनफ़ अदब का जुज़ है? ए में ड्रामा, बी में इंशाइया, सी में दास्तान और डी में मजमून। तो ये आपको ड्रामा, मौसीकी और स्टेज जो है ये ड्रामा का सिनफ़ जुज़ है। सवाल नंबर 44, ड्रामा खाना जंगी में किस मुग़ल बादशाह के 2 शहज़ादों की नज़रियाती कशमकश को मौजू बनाया गया है? ड्रामा खाना जंगी में किस मुग़ल बादशाह के 2 शहज़ादों की नज़रियाती कशमकश को मौजू बनाया गया है? ए में है बाबर, बी में है अकबर आज़म और सी में है हुमायूं और डी में है शाहजहाँ। तो ये शाहजहाँ। सवाल नंबर 45, उर्दू अदब में हबीब तनवीर किस हैसियत से मशहूर है? ए में मुअर्रिख, बी में शायर, सी में ड्रामा निगार और डी में मज़ाह निगार। तो उर्दू अदब में हबीब तनवीर जो है ये ड्रामा निगारी के वजह से मशहूर है। और हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा मशहूर है? आगरा का बाज़ार। और आगरा का बाज़ार में जो है ये नज़ीर अकबर आबादी के हयात पर मबनी है। ये नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर ये ड्रामा आगरा का बाज़ार ये लिखे हैं हबीब तनवीर। सवाल नंबर 46, सर सैयद के लिटरेरी असिस्टेंट की हैसियत से किस अहले कलम ने काम किया था? सवाल नंबर 46, सर सैयद के लिटरेरी असिस्टेंट की हैसियत से किस अहले कलम ने काम किया था? ज़काउल्लाह, बी में मौलाना वहीदुद्दीन सलीम और सी में है नवाब मोहसिनुल मलिक और डी में डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना वहीदुद्दीन सलीम।
असिस्टेंट की हैसियत से ये काम किए थे सर सैयद अहमद खां के। और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा लिखने का काम क्या था? ज़काउल्लाह। सवाल नंबर 47, सर सैयद की वो कौन सी तसनीफ़ है जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों की तफसील पेश की गई है? ए में तबीनुल कलाम, बी में खुतबात अहमदिया, और सी में है जाम जम, और डी में आसारुस सनादीद। इसका सही जवाब हो जाएगा आसारुस सनादीद। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र है। सवाल नंबर 48, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? ए में 1825, और बी में 1827, सी में 1830, डी में 1832। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825। सवाल नंबर 49, दिल्ली कॉलेज के 2 अहम सतूनों के नाम बताइए जिन्होंने वर्नाकुलर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साइंसी तारीख़ी अदबी किताबें तैयार कराई। दिल्ली कॉलेज के 2 अहम सतून के नाम बताइए जिन्होंने वर्नाकुलर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साइंसी तारीख़ी व अदबी किताबें तैयार कराई। ए में मौलवी इकराम अली और लल्लू लालजी, बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत और निहाल चंद लाहौरी, सी में है मीर बहादुर अली हुसैनी और पंडित राम निगम, और डी में है मौलाना साहबाई और मास्टर रामचंद। तो सही जवाब हो जाएगा इसका मौलाना साहबाई और रामचंद। सवाल नंबर 50, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ और किस सन में कायम की? ए में 1863 गाज़ीपुर, बी में 1865 ईस्वी रामपुर, और सी में 1869 ईस्वी अलीगढ़, और डी में है 1871 ईस्वी पानीपत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1863 गाज़ीपुर। सवाल नंबर 51, किस किताब से मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर को उर्दू अदब में हयात जावेद हासिल हुई? ए में गुलजार सरवर, बी में शगुफ़ा मोहब्बत, सी में फसाना अजायब, और डी में है शरर इश्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर को उर्दू अदब में हयात जावेद हासिल हुई थी फसाना अजायब के ज़रिए से। सवाल नंबर 52, टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? ए में है सरजीत सिंह, बी में है बिशन सिंह, और सी में है राजिंदर सिंह, और डी में है प्रताप सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा बिशन सिंह। ये टूबा टेक सिंह अफसाना है, और किसका ये अफसाना है? तो राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना टूबा टेक सिंह। सआदत हसन मिंटू का अफसाना है टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह सआदत हसन मिंटू का अफसाना। सवाल नंबर 53, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है डॉट डॉट। इसम ख़ास की एक किस्म है जो बादशाह या राजा या कौम की तरफ से लोगों को अच्छी खिदमत के सिला में दिया जाता है। ए में है उर्फ़, बी में है लक़ब, सी में है ख़िताब, या डी में है कुन्नियत। बादशाह या राजा या कौम की तरफ से लोगों को अच्छी खिदमत के सिला में दिया जाता है। उर्फ़, लक़ब, ख़िताब या कुन्नियत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख़िताब। सवाल नंबर 54, इनमें से ज़र्फ़ मक्का की मिसाल कौन सी है? ए में है सुबह, बी में है कुतुब खाना, सी में है तलवार, और डी में है आग। तो ज़र्फ़ मक्का कुतुब खाना। सवाल नंबर 55, माज़ी करीब की निशानदेही कीजिए। ए में है बिजली चमकी है, बी में है मोहन आया था, सी में है ज़फ़र जा रहा था, और डी में है रहीम गया होगा। तो माज़ी करीब बिजली चमकी है, अभी चमकी है, इसलिए माज़ी करीब है। सवाल नंबर 56, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो क्या कहलाता है? ए में है फ़ेल मजहूल, बी में है फ़ेल मुतादी, सी में है फ़ेल मारूफ, और डी में है फ़ेल नाक़िस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़ेल मारूफ। सवाल नंबर 57, किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हुर्फ़ जार की निशानदेही कीजिए। ए में है किताब, बी में है, और सी में है मेज़, और डी में है पर। तो इस जुमले में किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हर्फ जार ये हो जाएगा पर, मेज़ पर हो जाएगा ये हर्फ जार। सवाल नंबर 58, कश्मीरी और दहलवी सिफत की कौन सी किस्म है? ए में सिफत अददी, बी में है सिफत मुशब्बा, और सी में है सिफत निस्बती, और डी में है इसमें आदद। इसका सही जवाब हो जाएगा सिफत निस्बती। सवाल नंबर 59, गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम किसकी किस्म है? सवाल है गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम किसकी किस्म है? ए में फ़ेल, बी में सिफत, सी में है ज़मीर, और डी में है मसदर।
इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीर। ज़मीर की किस्में हैं गैर मुखातिब और मुतकल्लिम। सवाल नंबर 60, शिबली नोमानी की कौन सी किताब सवानही तसानीफ़ के ज़ुमरे में नहीं आती है? ए में है शेरुल अज़्म, बी में है अल ग़ज़ाली, सी में अल मामून और डी में अल फ़ारूक़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरुल अज़्म। ये तनक़ीद की किताब है। सवाल नंबर 61, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ सिंध में हुआ क्योंकि मुसलमान पहले बड़ी तादाद में उसी खिते में आकर आबाद हुए। पहले पहल जो है बड़ी तादाद में इसी खिते में आकर आबाद हुए। ये नज़रिया किसने पेश किया है? ए में सैयद सुलेमान नदवी, बी में मसूद हुसैन ख़ां, सी में है मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सिंध से नज़रिया किसने पेश किया उर्दू का? ये सैयद सुलेमान नदवी ने। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ सिंध में हुआ, ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया। सवाल नंबर 62, इनमें से शौकत सब्ज़वारी के नज़रिए की निशानदेही कीजिए। ये में है उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, बी में है उर्दू बुर्ज भाषा से निकली, सी में है दो आबा गंगो जमन उर्दू का मिस्किन है और डी में है सरजमीन दिल्ली और उसके गर्दो नवा उर्दू की जाए पैदाइश है। तो दो आबा गंगो जमन ये सही जवाब हो जाएगा। शौकत सब्ज़वारी ने दो आबा गंगो जमन से उर्दू का मिस्किन बताया है। सवाल नंबर 63, तज़किरा आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ए में महमूद शिरानी, बी में सैयद सुलेमान नदवी और सी में नसीरुद्दीन हाशमी और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये डी जवाब सही हो जाएगा, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये तारीख़ी किताब है, उर्दू शोरा की तारीख़ी किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। सवाल नंबर 64, निज़ामी बेदरी की मसनवी कौन सी है? ए में चंद्र बदन महया, बी में कदम रहो पदम रहो, सी में है फूलबन और डी में है फतह नामी निज़ाम शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कदम रहो पदम रहो, फ़खरुद्दीन निज़ामी। ये बहमनी दौर की, फ़खरुद्दीन निज़ामी जो है बहमनी दौर का शायर है और उसने सबसे पहली मसनवी कदम रहो पदम रहो लिखी, ये सबसे पहली मसनवी है। सवाल नंबर 65, खुशनामा किस दक्कनी सूफ़ी शायर की तख्लीक है? सवाल नंबर 65, खुशनामा किस दक्कनी सूफ़ी शायर की तख्लीक है? ए में है ख़ाता बंदा नवाज़ गेसू दराज और बी में है बुरहानुद्दीन जानब, सी में है मीरा जी शमसुल अशाक और डी में है सैयद शाह अशरफ बयाबानी। तो खुशनामा ये मीरा जी शमसुल अशाक की लिखी हुई है। सवाल नंबर 66, आदिल शाह सल्तनत का बानी कौन था? ए में है इस्माइल आदिल शाह, बी में है यूसुफ आदिल शाह, सी में है अली आदिल शाह और डी में है इब्राहिम आदिल शाह। तो आदिल शाही सल्तनत का बानी जो है ये यूसुफ आदिल शाह। सवाल नंबर 67, जगत गुरु किस आदिल शाही हुक्मरान का लक़ब था? ए में इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, बी में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, सी में है अली आदिल शाह सानी और डी में है इब्राहिम आदिल शाह सानी। जगत गुरु के नाम से कौन मशहूर हुए? इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 68, इनमें से बुरहानुद्दीन जानब की तसनीफ़ कौन सी है? ए में है कलमतुल हक़ाइक़, बी में है जन्नत सिंगार, सी में है अली नामा और डी में है गुलशन इश्क। तो बुरहानुद्दीन जानब की तसनीफ़ जो है ये कलमतुल हक़ाइक़ है और ये अली नामा जो है ये नुसरती की है और गुलशन इश्क भी नुसरती की है। सवाल नंबर 69, किताब नोरिस में कुल कितने गीत हैं? ए में है 50, बी में है 56, सी में है 57 और डी में है 59। तो सही जवाब हो जाएगा किताब नोरिस में ये कुल 59 गीत हैं। सवाल नंबर 70, बुरहानुद्दीन जानब और मीरान जी शमसुल उशाक के दरमियान क्या रिश्ता है? ए में उस्ताद शागिर्द का, बी में बाप बेटे का, सी में चचा भतीजे का और डी में मुर्शिद व मुरीद का। तो सही जवाब हो जाएगा बाप बेटे का। सवाल नंबर 71, रुस्तमी की मसनवी ख़ाबरनामा के मरकज़ी किरदार की निशानदेही कीजिए। सवाल है रुस्तमी की मसनवी ख़ाबरनामा के मरकज़ी किरदार की निशानदेही कीजिए। ए में हज़रत उमर, बी में हज़रत उस्मान, सी में हज़रत अली और डी में है हज़रत इमाम हुसैन। तो सही जवाब हो जाएगा हज़रत अली। सवाल नंबर 72, शाही किस आदिल शाही हुक्मरान का तखल्लुस है? शाही किस आदिल शाही हुक्मरान का तखल्लुस है? ए में इब्राहिम आदिल शाह, बी में यूसुफ आदिल शाह, सी में अली आदिल शाह सानी
और डी में है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। तो ये अली आदिल शाह सानी का तखल्लुस है शाही, अली आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 73, नुसरती का साल वफ़ात क्या है? नुसरती का साल वफ़ात क्या है? ए में है 1674 ईस्वी, बी में 1676 ईस्वी, सी में 1678 ईस्वी और डी में है 1680 ईस्वी। तो नुसरती का साल वफ़ात 1674 ईस्वी। सवाल नंबर 74, मसनवी तारीख़ इस्कंदरी का दूसरा नाम बताइए। ए में सैफुल मुलूक बदीउल जमाल, बी में है गुलजार इश्क, सी में है फ़तहनामा निज़ाम शाह और डी में फ़तहनामा बहलुल खां। तो तारीख़ इस्कंदरी का दूसरा नाम जो है फ़तहनामा बहलुल है। सवाल नंबर 75, मनोहर और मदमालती किस दक्कनी मसनवी के किरदार हैं? ए में अली नामा, बी में तारीख़ इस्कंदरी और सी में है गुलशन इश्क और डी में है फ़तहनामा निज़ाम शाह। तो मनोहर और मदमालती ये किस मसनवी के किरदार हैं? तो गुलशन इश्क के किरदार हैं। और ऊपर गुलशन इश्क सॉरी ये बताया गया है, गलत ऑप्शन चला गया इसमें। तो गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की है, गुलशन इश्क नुसरती की है। सवाल नंबर 76, कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद किसने डाली? ए में है सुल्तान कुली कुतुब शाह और बी में मोहम्मद कुतुब शाह और सी में इब्राहिम कुतुब शाह और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 76, कुतुब शाही सल्तनत के बुनियाद किसने डाली? ए में है सुल्तान कुली कुतुब शाह, बी में है मोहम्मद कुतुब शाह और सी में है इब्राहिम कुतुब शाह और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बुनियाद डाली थी कुतुब शाही की। सवाल नंबर 77, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ए में निज़ामी बेदरी, बी में है मुल्ला वजी, सी में है शाह हातिम और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर। सवाल नंबर 78, मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? ए में निज़ामुद्दीन, बी में असदुल्ला, सी में है नसरुल्लाह और डी में है वजीहुद्दीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असदुल्ला, मुल्ला वजी का असल नाम असदुल्ला। सवाल नंबर 79, मसनवी कुतुब मुश्तरी में हीरोइन मुश्तरी का असल नाम क्या है? ए में है बानोमती, बी में है शानोमती, सी में है भागमती और डी में है इंदुमती। इसका सही जवाब हो जाएगा भागमती। सवाल नंबर 80, मुल्ला वजी ने सब रस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी थी? ए में है अब्दुल्लाह कुतुब शाह, बी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और सी में है इब्राहिम कुतुब शाह और डी में है सुल्तान कुली कुतुब शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर सब रस लिखी थी। सवाल नंबर 81, इनमें से कौन सा शायर दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता? ए में है ज़ौक़, बी में है मीर दर्द, सी में है मोमिन और डी में है आतिश। तो कौन शायर जो है दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता? ये मोमिन। कौन शायर दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो ये सॉरी आतिश हो जाएगा इसका जवाब। इनमें से कौन शायर जो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आतिश। सवाल नंबर 81, इनमें से कौन सा शायर है जो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आतिश। सवाल नंबर 82, रंगीन व इंशा किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर था? रंगीन और इंशा किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर था? ए में है शहर आशो, बी में है रेख्ती, सी में है मरसिया और डी में है रुबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेख्ती। रेख्ती के लिए रंगीन और इंशा मशहूर थे। सवाल नंबर 83, वाक़या निगारी किस सिंफ सुखन की अहम खसूसियत है? ए में है गज़ल, बी में रुबाई, सी में है मसनबी और डी में है क़ता। तो सही जवाब हो जाएगा मसनबी। मसनबी जो है ये वाक़या निगारी के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 84, बेनज़ीर और बद्र मुनीर किस मसनबी के किरदार हैं? ए में है सहरुल बयां, बी में गुलजार नसीम, सी में है सर इश्क और डी में है ख्वाब ख्याल। इसका सही जवाब हो जाएगा सहरुल बयां। मीर हसन की मसनबी सहरुल बयां, बदर मुनीर और बेनज़ीर का किरदार है इसमें। सवाल नंबर 85, मीर ग़ुलाम हसन किस शायर का असल नाम है? मीर अनीस, बी में है शौक़ लखनवी, सी में है मीर तक़ी मीर और डी में है मीर हसन।
मीर गुलाम हसन किसका असल नाम है? ये मीर हसन का। मीर हसन ने क्या लिखी है? शहरुल बयां, मसनबी लिखी। सवाल नंबर 86, मुसहफ़ी के शायर शीरी बयां से किस शायर की वफ़ात की तारीख निकाली? मुसहफ़ी ने शायर शीरी बयां से किस शायर की वफ़ात की तारीख निकाली? ए में मीर हसन, बी में दयाशंकर नसीम, सी में आतिश और डी में है मिर्ज़ा दबीर। मुसहफ़ी ने शायर शीरी बयां से किस शायर की वफ़ात की तारीख निकाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर हसन की। मीर हसन की शायर शीरी बयां से तारीख़ वफ़ात निकाली। सवाल नंबर 87, मसनबी गुलजार नसीब किस दबिस्तान का अहम कारनामा है? ए में दबिस्तान अजीम आबाद, बी में दबिस्तान दिल्ली और सी में है दबिस्तान लखनऊ और डी में है दबिस्तान रामपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दबिस्तान लखनऊ। सवाल नंबर 88, दयाशंकर नसीम ने किस शायर की शागिर्दी इख्तियार की? ए में गालिब, बी में आतिश और सी में है दर्द और डी में है सौदा। इसका सही जवाब हो जाएगा आतिश। आतिश की शागिर्द थे दयाशंकर नसीम। सवाल नंबर 89, मरसिया दाग किसका लिखा हुआ शख्सी मरसिया है? ए में है इकबाल, बी में है जोश, सी में है सौदा और डी में है मीर अनीस। तो मरसिया दाग किसका लिखा हुआ है? ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है मरसिया दाग। सवाल नंबर 90, रजज़ किस सिंफ शायरी का जुज़्व है? ए में गज़ल, बी में मरसिया, सी में मसनबी और डी में है सानेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरसिया। सवाल नंबर 91, मीर अनीस का असल नाम क्या था? सलामत अली, बी में बब्बर अली, सी में है हसन अली और डी में है सिकंदर अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस असल नाम बब्बर अली। सवाल नंबर 92, जेल में एक बयान और एक दलील दी गई है। एक बयान और एक दलील दी गई है, उनको गौर से पढ़िए और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। बयान है कि मरसिया चूँकि वाक़यात की करबला की तस्वीर पेश करते हैं। दलील है इसलिए कि ये ईसार हक गोई की तरगीब दिलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बयान और दलील दोनों सही है। सवाल नंबर 93, मुगलिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार और शायर कौन है? ए में बहादुर शाह ज़फ़र, बी में औरंगज़ेब, सी में शाहजहाँ और डी में है हुमायूं। इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र। मुगलिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार और शायर थे बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 94, बहादुर शाह ज़फ़र के इस मिसरे को मुनासिब लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। जिसे ऐश में और खाली जगह दिया हुआ है डैश न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जिसे ऐश में न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ए में है याद सफ़र, बी में है याद सितम और सी में है याद अजल और डी में है याद खुदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा याद खुदा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। सवाल नंबर 95, तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? ए में है मोमिन, बी में है ज़ौक़, सी में है दर्द और डी में है गालिब। इसका सही जवाब हो जाएगा मोमिन। तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का शेर है। सवाल नंबर 96, इनमें से किस शायर को दरबार ज़िंदगी मदह गोई और अमीरों की खुशामद गवारा नहीं हुई? ए में है ज़ौक़, बी में है गालिब, सी में है दाग और डी में है मोमिन। तो किसे दरबारी ज़िंदगी और मदह गोई और अमीरों की खुशामद गवारा नहीं हुई है? हाकिम मोमिन का मोमिन है। सवाल नंबर 97, मीर के शेर में कौन सी सनत पाई जाती है? मुस्तंद है मेरा फरमाया हुआ, सारे जहाँ पे हूँ छाया हुआ। तो ए में है मिरातु नज़ीर, बी में है तालाउल मुबालगा और सी में है लफ़ो नश और डी में है तलमीह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुबालगा। सवाल नंबर 98, ख्वाजा मीर दर्द की सने विलादत की निशानदेही कीजिए, कब पैदा हुए? ए में है 1718 ईस्वी, बी में है 1720 ईस्वी, सी में है 1721 ईस्वी और डी में है 1722 ईस्वी। तो ख्वाजा मीर दर्द की सने विलादत 1721 ईस्वी। कहाँ? तो दिल्ली में। सवाल नंबर 99, वाय नाकामी के वक्त मर गया साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था, ये किसका शेर है? ए में है दर्द, बी में है ज़ौक़, सी में है मीर और डी में है जिगर। तो ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। वाय नाकामी के वक्त मर गए साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था।
सवाल नंबर 100, दिल्ली में वली की मुलाकात किस शायर से हुई थी? ए में शाह हतीम, बी में है खान आरजू, सी में है शाह सादुल्ला गुलशन और डी में है मजहर जाने जाना। तो ये शाह सादुल्ला गुलशन दहलवी से मुलाकात हुई थी वली की। सवाल नंबर 101, खाली जगह दिया हुआ है, सब बाहर खोती है, सही लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ए में बेकसी और बी में है बेबसी और सी में बेखुदी और डी में है मुफलिसी। इसका सही जवाब हो जाएगा मुफलिसी, सब बाहर खोती है, और आगे का मिसरा मर्द का एतबार खोती है। सवाल नंबर 102, जेल में एक बयान और एक दलील दी गई है, उनको गौर से पढ़िए और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। बयान, जिगर बिलानोश थे, जिगर बिलानोश थे, बलानोश थे, जिगर बलानोश थे। और दलील है इसलिए कि झूमते झामते मुशायर में आते और बेखुदी के आलम में शेर सुनाते। ये ऑप्शन में बयान गलत और दलील भी गलत, यानी बयान दी गई है एक, जिगर बला नोश थे, और दलील इसका है इसलिए कि वो झूमते झामते मुशायर में आते और बेखुदी के आलम में शेर सुनाते थे। तो ए में है बयान गलत और दलील सही, और बी में है बयान भी सही और दलील भी सही, सी में है बयान सही और दलील गलत, और डी में है बयान गलत और दलील सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बयान भी सही है और दलील भी सही है। सवाल नंबर 103, ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को अता किया गया? ए में है फिराक, बी में है जिगर और सी में है गालिब और डी में है अकबर इलाहाबादी। इसका सही जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 104, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर जो है ये फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 104, इनमें से फिराक का शेरी मजमूआ कौन सा है? ए में शोला तूर, बी में है आतिश गुल और सी में है शबिस्तान और डी में है रूह रवा। तो इनमें फिराक का शेरी मजमूआ कौन सा है? तो ये आतिश गुल फिराक का शेरी मजमूआ है। सवाल नंबर 105, शेख वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? ए में फ़ानी, बी में जिगर, सी में है कैफ़ी आज़मी और डी में है नज़ीर अकबर आबादी। तो शेख वली मोहम्मद ये नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है, और अली मोहम्मद शाद अजीम आबादी का असल नाम है। सवाल नंबर 106, नज़ीर अकबर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? 1779 ईस्वी आगरा, 1739 ईस्वी आगरा, और बी में है 1740 ईस्वी दिल्ली, और सी में है 1743 ईस्वी रामपुर, और डी में है 1745 ईस्वी लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1740 ईस्वी दिल्ली, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश। सवाल नंबर 107, इनमें से किस शायर ने तंज़ु ज़राफ़त के मैदान में अपनी शनाख्त कायम की? ए में अमजद हैदराबादी और बी में है ज़ौक़ और सी में है मोमिन और डी में है अकबर इलाहाबादी। तो शायर के तंज़ु ज़राफ़त के मैदान में शनाख्त कायम की थी अकबर इलाहाबादी ने। सवाल नंबर 108, अकबर इलाहाबादी की नज़्म की शनाख्त कीजिए। ए में बर्क़ कुलैसा, ए में है बर्क़ कुलैसा और बी में है सुबह शाम और सी में है बरसात की बहार और डी में है बदली का चाँद। तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म जो है बर्क़ कुलैसा है। सवाल नंबर 109, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ए में 8, बी में 7 और सी में 5 और डी में है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। मुखम्मस के बंद में 5 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 110, मुरब्बा के मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मुरब्बा कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो ये मुरब्बा जो है मुरब्बा के माने ही 4 के आते हैं, 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 111, सही मिसरे लगाकर शेर मुकम्मल कीजिए। कोई उम्मीद भर नहीं आती, ए में है नींद क्यों रात भर नहीं आती, बी में है अब किसी बात पर नहीं आती, सी में है कोई सूरत नज़र नहीं आती और डी में है मौत आती है पर नहीं आती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सवाल नंबर 112, गालिब ने ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी? गालिब ने ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी थी? ए में है वाजिद अली शाह, बी में अकबर शाह, सी में है दारुशकू और डी में है बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र की फरमाइश पर जो है ख़ानदान तैमूर की तारीख़ लिखी थी। सवाल नंबर 113, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, मीर से मुतालिक ये मिसरा किस शायर ने कहा है? न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ये मिसरा किस शायर ने कहा है? ए में ज़ौक़, बी में गालिब, सी में सौदा और डी में मोमिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़। ज़ौक़ ने कहा है कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ये मीर के मुतालिक ज़ौक़ ने कहा था।
सवाल नंबर 114, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ और किस सन में हुआ था? ए में 1807 दिल्ली, बी में 1808 रामपुर, सी में 1809 हैदराबाद और डी में 1810 लखनऊ। तो ये 1810 ईस्वी लखनऊ, मीर तकी मीर का इंतकाल। सवाल नंबर 115, ज़बानी तरतीब से शायरों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ज़ौक़, गालिब, हाली और इस्माइल मेरठी। ज़ौक़, गालिब, हाली और इस्माइल मेरठी। ज़ौक़, गालिब, हाली, इस्माइल मेरठी और अकबर इलाहाबादी। ज़ौक़ जो है 1779 ईस्वी में पैदा हुए दिल्ली में। गालिब 1797 ईस्वी अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। तो 1779 ईस्वी और 1797 ईस्वी। और हाली जो है 1837 ईस्वी में पैदा हुए थे पानीपत में। और इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी में पैदा हुए थे और अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 116, मुनासिब मक्ता चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। गर्चे मुल्क दक्कन में है इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए, खाली जगह में भरना है, पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, मीर, ज़ौक़, सूस और जोश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़। गर्चे मुल्क दक्कन में है इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए, ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। सवाल नंबर 117, ख्वाब जहांगीर और नूर जहां का मज़ार किस शायर की नज़्में हैं? ख्वाब जहांगीर और नूर जहां का मज़ार किस शायर की नज़्में हैं? ए में हसरत, बी में कैफ़ी आज़मी, सी में सरदार जाफरी और डी में है तलुकचंद महरूम। तो ये तलुकचंद महरूम की नज़्म है। सवाल नंबर 118, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए में तुर्की, बी में अरबी और सी में फ़ारसी और डी में उर्दू। इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है गज़ल। सवाल नंबर 119, कौन सी सिनफ़ सुखन दाखिली और गनाई सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है? कौन सी सिनफ़ सुखन जो है ये दाखिली और गनाई सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है? दाखिली और गनाई। ए में है मरसिया, बी में है शहर आसोब, सी में है गज़ल और डी में है मसनबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाखिली और गनाई सिनफ़ शायरी के लिए गज़ल जो है ये मशहूर है। सवाल नंबर 120, वो नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? ए में है मुसल्लस, बी में मुखम्मस, सी में मुरब्बा और डी में है मुसद्दस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुसल्लस। 3 बंदों पर जो मुश्तमिल होता है शेर, उसे जो है मुसल्लस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।